Good morning, everyone. Welcome back. I hope you all are doing great at your home and must have completed your previous work. Alright? Now, today we are going to read about chapter 2, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution, part 1. Okay? Children, you have read in chapter 1, that is French Revolution, and you know about it had a great impact on the world as it had brought about a dynamic change in the way in which society was formed, right? Before 18th century, you very well know society was divided into states, orders, right? And economic and social powers were controlled by the church and the aristocracy. Clear? So suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this. New ideas about individual rights and who controlled the social power began to be discussed in Europe, Asia और many parts of the world. दुनिया के बहुत से हिस्सों में इसी चीज़ की चर्चा होने लगी कि अब सोशल पावर जो है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, राइट? नेक्स्ट इज द एज ऑफ सोशल चेंज. In India, Raja Ram Mohan Roy and Derozio they talked about the significance of the French Revolution. ठीक है, भारत में भी इसकी चर्चा हुई, इसके अर्थ निकाले गए एंड अदर डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप. ठीक है, और उन्होंने जो है पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप के बारे में भी चर्चाएं की एंड ऑल दीज आइडियाज़ वर रिफ्लेक्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनीज. ओके, and the social political changes that took place all over Europe can be traced to the French Revolution. Okay, but not everyone in Europe wanted a complete transformation of society. हर कोई तो चाहता नहीं था कि complete transformation of society की. तो कुछ थे इनमें liberals, radicals और conservatives. ठीक है, and the French revolutionary ideas that you have read in the last chapter, what were they? They were liberty, equality and fraternity. They became the inspiring ideals that motivated political movements in the world in 19th and 20th century. Okay. Now let's talk about liberals, radicals and conservatives one by one. Start with liberals. Okay. So one of the group which looked to change society were the liberals. Okay. They wanted a nation which tolerated all religion. This time, European states generally discriminated in favor of one religion or another. ठीक है, एक तरह का रिलीजन चल रहा था, जैसे ऑस्ट्रिया, स्पेन ये फेवर कर रहे थे कैथोलिक चर्च को, जबकि ब्रिटेन जो था वो फेवर कर रहा था इंग्लैंड के चर्च को. ओके, एंड दे वर अपोज टू अनरिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क. ठीक है, and they favor religious tolerance and wanted to safeguard individual rights against government, and they argued for a representative and elected parliamentary government. ठीक है, and they favored a well trained judiciary जो कि रूलर्स और ऑफिशियल से इंडिपेंडेंट हो, उनके प्रभाव में ना हो. ठीक है, एंड दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. लिबरल्स जो थे दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. वाई दे वर नॉट डेमोक्रेट्स? बिकॉज दे डिडंट फेवर UAF. यू वेरी वेल नो UAF, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मीन्स द राइट टू वोट ऑफ एवरी सिटीजन. क्लियर? एंड दे वॉन्टेड वोटिंग राइट्स टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैन ऑफ प्रॉपर्टी. जिसके पास पैसा है वही वोट दे सकता है, राइट? एंड दे ऑल्सो डिडंट वॉन्ट द वोट फॉर विमेन. और वो ये भी नहीं चाहते थे कि विमेन वोट करें, राइट? नेक्स्ट इज रेडिकल. रेडिकल्स दे सपोर्टेड विमेन्स राइट्स एंड बैक द वेरियस सफ्रेजेट मूवमेंट. अब लिबरल से बिल्कुल उल्टे थे ये, है ना? ये विमेन राइट्स जो थे उनको सपोर्ट करते थे. सफ्रेजेट मूवमेंट इन्होंने किए. सफ्रेजेट मूवमेंट मीन्स द मूवमेंट्स फॉर गिविंग विमेन द राइट टू वोट. ठीक है, and then radical wanted a nation in which government was based on the majority of country's population. तो रेडिकल्स जो थे वो इस तरह का नेशन चाहते थे कि जिसमें सरकार जो है वो देश की पॉपुलेशन की मेजॉरिटी पे आधारित हो, राइट? एंड रेडिकल्स अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ द प्रॉपर्टीड क्लास.
तो ये जो थे ये प्रॉपर्टीड क्लास के प्रिविलेजेस को अपोज करते थे. दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो नहीं थे, लेकिन किसी के हाथ में कॉन्सेंट्रेशन हो जाता था, जैसे ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी उसको डिसलाइक करते थे, राइट. सो डिसलाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. क्लियर. नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव्स, राइट. तो कंजर्वेटिव्स कौन थे? दे वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स. ठीक है, वो अपोज दोनों को ही करते थे. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने सोचा कि चेंज होना चाहिए. ठीक है, ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज. क्लियर. इन 18th century conservatives had been generally opposed to the idea of change. शुरू में क्या कहते थे ये कि चेंज नहीं होना चाहिए, राइट. बाय 19th century conservatives accepted that some changes जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उन्होंने भी मान लिया, राइट. बट बिलीव्ड, साथ ही साथ उनका मानना था कि दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड. जो पास्ट है उसका रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, so I hope you have understood today's topic. If there is any query regarding that, you can message me. Okay class, thank you.